So hello to you all. Myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. Listen, हर साल एक यूनिवर्सिटी सामने आती है हमारे जहाँ पर ओवर क्राउडनेस होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं, बट no one wants to talk about it, no one wants to expose it, okay? And due to greediness of agents, क्योंकि उनका काम है पैसा कमाना, पैसा उन्होंने कमा लिया, उसके बाद अब्रॉड में बच्चा जाके कैसे भी रहे, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, no one wants to talk about it, no one cares about it. Due to overcrowdedness, due to over-admissions, there are problems which is happening in Samarkand State Medical University, which I'm gonna talk about it right now. So, from the Embassy of India, I will attach the photos here, okay? Advisory for Indian students, October 31st, 2025. Samarkand State Medical University, known as SSMU, okay? So in this thing, they have talked about some issues which students face. So I will try to dictate the exact line which is written. It has come to the notice of Indian Embassy that SSMU already had a total of 3,239 international students in its roll-up till the academic year 2024-2025. So already यहाँ पर 3,239 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और ये डाटा हमारा 2024-2025 बैच का है. 2025 में अभी कितने एडमिशन्स हुए हैं? This data we did not have it. Okay, so already these many students are studying there. Okay, so this year winter intake, SSMU has admitted about 1,400 Indian students in the first year, means 2025 we are talking about, and above the capacity that the university can handle. So basically, university doesn't have this much space in their dormitories, in their hostels, but still they are taking admissions. Okay, it is mentioned that they have taken admissions above the capacity of the university. Fine. This impacts the quality of education and leads to lack of clinical exposure to students. We understand the students have been raising the issue with the university. Okay, so इस साल हमारे पास 1400 एडमिशन्स हुए हैं ताशकंद में, ठीक है, सॉरी SSMU में, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जो कि इनकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है. एंड ऑफ कोर्स अगर यूनिवर्सिटी के पास कैपेसिटी इतनी स्टूडेंट्स की नहीं है तो रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा. एजेंट जो है वो अंधाधुन एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है भाई, तुम्हारा एडमिशन हम करवा के देंगे खत्म, तुम्हारा एडमिशन हम करवा के देंगे खत्म. डजंट मैटर बच्चा जब वहां जा रहा है उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है नहीं, उसको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं नहीं, उसका क्लिनिकल एक्सपोजर प्रॉपर हो रहा है या नहीं, यूनिवर्सिटी के पास इतनी कैपेसिटी है या नहीं, बट स्टिल ड्यू टू ग्रीडनेस ऑफ मनी ही कह लो भाई, मेरी लैंग्वेज में तो ये यही है, ड्यू टू दैट दे आर नॉट अवेयर इन स्टूडेंट्स एंड दे आर टेकिंग एडमिशंस. Okay, around 600 students have been accommodated in various hostels as there are no proper hostels. So for students there are no proper hostels. 600 बच्चों को उन्होंने इधर उधर कैसे करके तो मैनेज किया. Complaints are being received in this regard. See, why hostel is important? Of course, it's for your mental well-being, right? If you have a proper place, your proper room, your proper place to study, okay, this is my room, there I will be studying, I will be doing my work and all and everything, your mental state will be fine and good, right? But if you're not, your place of study is not decided, your place of living is not decided, you do not know where you are going to live, where you are going to study, okay, how you will be mentally prepared for other 6 years? It's like too much problematic for students जिनको ये भी नहीं पता कि हमारा हॉस्टल कहाँ है, हम आधे बच्चे यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम थोड़े बच्चे वहाँ क्यों रह रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कीप इन माइंड. ओके, सो कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव अगेंस्ट अ कंपनी. आई डोंट थिंक आई शुड नेम द कंपनी हियर, but still I will upload picture and I think you can see. So I'm not going to reveal the company name here, okay? So complaints have been received against a company dash that is admitting Indian student to Samarkand State Medical University. तो कोई तो एक XYZ कंपनी है, ठीक है, जिसको पता है कि अभी समरकंद की सिचुएशंस क्या है, बट स्टिल वो कंपनी एडमिशंस करवा रही है. एंड आई डू नॉट नो वेदर दैट कंपनी इज टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट और नॉट, बट द एम्बेसी हैज टेकन अप दीज इश्यूज विद SSMU. और जब हमारी एम्बेसीज को ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने इन इश्यूज पे आई गेस बातें करी हैं एंड द रिस्पॉन्स इज अवॉइडेड. ओके, द स्टूडेंट्स आर अगेन आस्क्ड टू गो थ्रू द अर्लियर एडवाइजर इश्यूज इन दिस रिगार्ड. The embassy will be regularly updating its advisories on universities, institutions which are not in line with the establishment.
सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग, ओके, दीज आर द थिंग्स। अब बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई वहां पे, बच्चों ने एम्बेसीज को बताया, अपनी कंप्लेंट्स लिखी और उन्होंने चीजें देखी, एक्शंस नॉट तो ले रहे वो नहीं ले रहे। बट व्हाट माय मेन पॉइंट इज हियर कि जब किसी भी एजेंट को पता है कि वहां पर बच्चे को प्रॉब्लम होने वाली है, वहां पर इन सब चीजों की दिक्कतें हैं, स्पेस नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज बच्चे को नहीं मिल पा रहे, तो वो अपने नॉलेज की वजह से किसी बच्चे की लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं। और अभी हमारी एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी चेंज करने का रूल भी बदल दिया। लाइक वी कैन नॉट चेंज यूनिवर्सिटी फॉर होल 6 ईयर। जहां पे हमने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी वही होना चाहिए आफ्टर 6 ईयर, हमारी डिग्री भी वही की भी होनी चाहिए, हमारा ग्रेजुएशन वही का होना चाहिए। सो दिस थिंग एनएमसी हैजंट अलाउड इट, ओके। ये हम यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं कर सकते। अब बताओ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने बाय मिस्टेक, उसको अवेयरनेस नहीं है, उसने गलती से एडमिशन ले लिया, ठीक है, किसी भी XYZ एजेंट पे ट्रस्ट करके, एंड नाउ दैट एजेंट इज नॉट सपोर्टिंग हिम, ओके, agent is not doing anything, the students are not getting resources in university, proper hostels, accommodations, they are not getting anything, okay, they have to take apartments and live there. So in this case, not every student who is going to Russia or any other country, they can afford money, okay, there will be lots of parents जिन्होंने अपने घर जमीनें सब बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं कि कैसे ना कैसे करके मेरे बच्चे का ड्रीम पूरा हो जाए, राइट। अब इसमें अगर बच्चे को ये कह दिया जाए कि भाई आपको तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, आप एक काम करो, बाहर 15,000 का 20,000 का महीने का अपार्टमेंट ले लो एंड यू लिव एंड यू स्टडी। सो जो बच्चा ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम से आया है, वो 15,000 20,000 अपार्टमेंट का अफोर्ड कैसे कर सकता है। अब इसमें यही चीज हो सकता है, या तो बच्चा पढ़ाई कर ले, या तो बच्चा यहाँ पे कहीं आस पास पार्ट टाइम जॉब करके अपना वो अपार्टमेंट का खर्चा निकाल ले, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। दोनों में नुकसान बच्चे का है, राइट। सो एजेंट्स आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ओवर एडमिशंस, नो हेल्प आफ्टर कमिंग टू रशिया, कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। और हमारी जो एनएमसी है, ठीक है, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी चेंज करने का सिस्टम भी हटा दिया कि आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। सो इन दिस केस व्हाट स्टूडेंट शुड डू, या तो अपना एडमिशन विदड्रॉ करा ले, वो इंडिया चला जाए, या तो वो जैसे भी उसको यहाँ पे कंडीशन मिल रही है उस कंडीशन में वो रहे, या तो वो अपार्टमेंट करवा ले। दीज थिंग्स आर पॉसिबल। सो इन जो भी सिचुएशन है इसमें नुकसान बच्चे का ही है। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन एनएमसी शुड डू ऑल दिस थिंग्स कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है यूनिवर्सिटी में किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि वो बच्चे की गलती है आई, तो मे बी आई थिंक दे शुड स्टार्ट द एक्सचेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज। लाइक बच्चे का जो पूरा मार्क्स वगैरह है वो सब देख के अलाउ कर दे, ओके फाइन, यू आर हैविंग प्रॉब्लम हियर बट योर गुड ग्रेड्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग इज गुड एंड यू कैन एक्सचेंज इन दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑल एंड एवरीथिंग। It will be a little problematic, but yes, अगर वो पहले भी हो रहा था तो वो अब भी हो सकता है। This is my opinion. I do not know, but do you think about it? I will suggest you to comment your opinions in this comment box so that we can get to know what other people think about it, what are your opinions and all and everything. So I hope that this video was anyhow helpful for you, and if it was, then please do subscribe to my channel and also share this video to all the neediest parents so that जिनको अगर फ्यूचर में कभी बाहर आना है तो वो इन सब चीज़ों में ना फंसे, ठीक है, और अपना जो एडमिशन है वो केयरफुली ले, ध्यान से ले, ताकि यहाँ पर 6 साल में प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर प्रॉब्लम्स आए तो वो वैसी प्रॉब्लम्स हो जिनका सोल्यूशन निकल सके, ऐसी नहीं जिनका कोई सोल्यूशन ही ना हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।